ایک تھا نیک بادشاہ جو اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا. اس کی بادشاہت سے سب خوش تھے اور سب اسے بہت پیار کرتے تھے. مگر ایک دن وہ اچانک بیمار ہو گیا اور پھر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا. اب میں بادشاہ ہوں اور اب میں اپنی مرضی کروں گا. بادشاہ علی، لوگ آپ کے پہلے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں، میرا پہلا حکم، آج سے میری سلطنت میں 3 ڈے نہیں اگیں گے. جی جیسے آپ کا حکم بادشاہ علی. اور میرا دوسرا حکم، اب سے سلطنت کے آدھے کھلونے میرے ہوں گے. اف، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. میرا مطلب بادشاہ علی، آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے، اپنی مرضی کے لیے نہیں. نہ، سر پہ تاج نہیں تو لوگوں پہ راج نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ... خاموش! میرے حکم کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ اسے قید کر دو. زینب، قائد اعظم، یعنی یہ سب ایک خواب ہے؟ قائد، میں بادشاہ علی کو کیسے سمجھاؤں کہ اس کے فیصلے صحیح نہیں ہیں اور ان سے لوگوں کو نقصان ہوگا؟ زینب، بادشاہی نظام کا یہی تو مسئلہ ہے. اگر بادشاہ اچھا ہو تو نظام صحیح چلتا ہے، لیکن اگر بادشاہ ٹھیک نہ ہو تو عوام کی کوئی آواز نہیں ہوتی. بادشاہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہے. تو ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ بادشاہ ہمیشہ لوگوں کی آواز سنے؟ بادشاہت میں تو نہیں، مگر جب جمہوریت ہوتی ہے تو تمہارے ہاتھ میں حکومت کو رکھنے یا بدلنے کی طاقت ہوتی ہے. اسی لیے تو جب پاکستان بنا تو ہم نے جمہوری نظام قائم کرنے کا فیصلہ کیا. پر میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ اکیلے شخص کے لیے نظام کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہم نے قوم کو اکٹھا کر کے پاکستان کے لیے پرامن آواز اٹھائی، تمہیں بھی لوگوں کو متحد کرنا ہوگا. مگر کیسے؟ یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا زینب، پہلا قدم اٹھا کے. لوگوں، ہم ایسے خود غرض بادشاہ کی حکمرانی میں نہیں رہ سکتے. ہر انسان کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے. یہ بادشاہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے. ہم جمہوری نظام اپنائیں گے جہاں ہم اپنے لیڈر خود چنیں گے، جہاں ہماری آواز سنی جائے گی. تم کیا سمجھتی ہو یہ لوگ اپنے لیے خود سوچ سکتے ہیں؟ ان میں اتنی سمجھ کہاں. یہ لو، اپنی حفاظت خود کرو. ہم ایک ایسی جگہ جائیں گے جہاں لیڈر کا انتخاب لوگ کریں گے. تم ایسا نہیں کر سکتے. میں بادشاہ ہوں، میرے سر پہ تاج ہے. صرف سر پہ تاج پہن کر لیڈر نہیں بنتا، لیڈر کو عوام کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. کلاس، اگلے ہفتے مانیٹر کے الیکشنز کے لیے ہمارے پاس 2 امیدوار ہیں، سارا اور مہنور. جو بھی آپ کو مانیٹر کے لیے بہتر لگے اس کے لیے ووٹ بیلٹ باکس میں ڈال دیں. دونوں امیدوار کو کیمپین کے لیے بیسٹ آف لک. مجھے پتا ہے کہ سارا ہی جیتے گی. ہاں، تمہیں پتا ہے نا تمہارے ساتھ کیا ہوگا اگر تم نے صحیح بندے کو ووٹ نہ دیا؟ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میں بھی سارا کی مدد کر سکتی ہوں. ہیلو، اگر اور ٹافی چاہیے تو سارا کو ووٹ دینا. ووٹ بیچو، کیلا لے لو. ووٹ کی مردالی، لے جا آم کی تھالی. ووٹ ووٹ ووٹ، افروڈ افروڈ افروڈ. قائد، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ووٹ بازار ہے. یہاں پہ آگے لوگ اپنے ووٹ بیچتے ہیں. ووٹ بیچتے؟ یہ اپنے ووٹ کی اہمیت نہیں جانتے. مگر زینب، آج تم نے بھی تو کلاس میں یہی کیا تھا. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ لیکن قائد، وہ مانور بے ایمانی کری تھی.
और मुझे सारा की मदद करनी थी। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम गलत काम का जवाब गलत काम से दो। इलेक्शन और जमहूरी निजाम तब चल सकता है जब इलेक्शन साफ और शफाफ हो, जिसमें लोग अपने जमीर से सोच समझ कर वोट डालें। वोट बेचने या धमकी में आके वोट देने से इलेक्शंस अपना मकसद खो देते हैं। आपका वोट आपकी आवाज है और उसको बेचना अपने जमीर को बेचने के बराबर है। अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हों तो सिर्फ तब पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अब मैं क्या करूं? इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब, पहला कदम उठा के। सारा, क्या हुआ ज़ैनब? सारा वो ना, ये कैंपेनिंग ईमानदारी से नहीं हुई। क्या? कैसे? महानूर बच्चों को धमका कर वोट लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने जब ये देखा तो मैंने बच्चों को टॉफी की लालच दी ताकि तुम्हें और वोट मिले। तुम्हें पता भी है महानूर ऐसे ही करती है। तुमने टीचर को क्यों नहीं बताया? अपने आप और बेईमानी क्यों की? पता नहीं क्यों नहीं सोचा। अब मुझे टीचर को बताना पड़ेगा और लोग सोचेंगे कि मैंने बेईमानी की है। हमेशा बड़ी अक्लमंद बनती हो, इस बार तुम्हें क्या हुआ है? सॉरी सारा, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। अच्छा ठीक है, मुंह तो ना बनाओ, माफ किया। मगर ज्यादा खुश ना हो, अभी मैंने टीचर को भी बताना है और उन्हें मासूम चेहरों पे रहम नहीं आता। सॉन्ग आइडल में खुश आमदीद। अब स्टेज पर आकर परफॉर्म करेंगी आलिया। ये थी आलिया। अगर आपकी पसंद की कैंडिडेट है तो उन्हें जरूर एसएमएस के जरिए वोट दीजिएगा। हाँ, मैंने इससे ही वोट देना है। इतनी बेसुरी आवाज को वोट दोगी? लेकिन देखो तो, आलिया इतनी स्टाइलिश है। मैं भी इसी को वोट दूंगा। मेरे मामू की पुप्पू की बेटी की हमसाई की दूध वाले की खालाजाद बहन है, मेरी दूर की रिश्तेदार है। ये गाना गाने का शो है, स्टाइल और रिश्तेदारी का इससे क्या लेना देना? अली, सारा, आप दोनों को लेने आ गए। कल हम यहाँ फिर मिलते हैं और एक साथ वोट करेंगे। अली और सारा का हक है अपनी मर्जी से वोट देने का, लेकिन मुझे उनकी सोच समझ नहीं आई। बड़ा दुश्वार होता है किसी को यूं बुला देना कि जब वो जज्ब हो जाए रगों में खून की मानद। वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। मगर मेरा बाजू? शायरी तो रूह को शिफा देती है दोस्त, बाजू तो हकीर सी चीज है, कैसे नहीं ठीक होगा। हैं? आप कैसे डॉक्टर हैं? वैसे तो मैं शायर हूँ, लेकिन ये क्लिनिक मेरे मामू का है तो उन्होंने मुझे डॉक्टर बना दिया। ज़ैनब, कायदे आज़म, ये क्या हो रहा है? यही होता है जब निजाम काबिलियत पे ना चले, जब लोग सिर्फ रिश्तेदारी और दिखावे की बुनियाद पे अहम फैसले करते हैं। इसका कोई हल नहीं है? ज़ैनब, लोगों ने पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में मेरा साथ इसलिए दिया था कि उन्हें मेरी काबिलियत और नजरिए पे यकीन था। इसलिए जब भी किसी काम के लिए किसी को चुनना हो तो उसकी काबिलियत और नजरिए देख के फैसला करना। मगर कैसे? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब, पहला कदम उठा के। ज़ैनब कहाँ रह गई है? चलो उसके बगैर ही वोट डाल देते हैं। रुको, वोट देने से पहले अच्छी तरह सोचो। देखो तो सही कि वो इस काबिल है कि तुम उसे वोट दो। लेकिन वो इतनी स्टाइलिश है। तो उसका गाने के कंपटीशन से क्या ताल्लुक? वोट देते हुए बंदे की काबिलियत देखो, उसका नजरिया देखो, फिर वोट दो। अच्छा बताओ, तुम दोनों कभी उसके कॉन्सर्ट पे जाओगे? बेशक वो मेरी रिश्तेदार है, लेकिन मैं अपने कान मजीद दुखाना नहीं चाहता। सुनो, अगर तुम्हारे मामू की फुप्पो की बेटे के हमसाये की दूध वाली की खालाजाद बहन तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो इस तरह तो दुनिया में सारे लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं।
साइमा तोड़ न्यूज से, जहां हर वक्त खबर ब्रेक होती है। आज हम बात करेंगे कि क्या अवाम हुकूमत से मुतमईन है या नहीं। जी आप बताइए। नहीं जी नहीं, मैं तो इस हुकूमत से बिल्कुल मुतमिन नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपने इलेक्शन में किसको वोट डाला? वोट वो ना असल में छुट्टी का दिन था तो मेरी आंख नहीं खुली, और फिर लंबी लाइनों में कौन लगे। क्या आपने इलाके के मसाइल हल करने के लिए कभी मुंतखब नुमाइंदों से मिलने की कोशिश की है? क्या हम गरीब लोग भी लीडरों से मिल सकते हैं? मुझे तो नहीं पता था। मुंतखब नुमाइंदों से मिलना आपका हक है और फर्ज भी। चले नाज़रीन, किसी और से बात करते हैं। ये आप सड़क की हालत तो देखें। मुझे लगता है कि हुकूमत को ना नई सड़क बनानी चाहिए। नई सड़क के लिए तो पैसे चाहिए। क्या आपने टैक्स दिया है? वो हम तो गरीब लोग हैं। इस स्मॉग की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हुकूमत कुछ नहीं करती, लेकिन शायद अवाम भी कुछ नहीं करना चाहती। क्या मुल्क की बेहतरी के लिए दोनों मिलकर काम नहीं कर सकते? ये क्या कर रहे हैं? घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं चल क्यों नहीं रही। मगर पैडल के बगैर साइकिल कैसे चलेगी? ज़ैनब, कायद, ये सब क्या हो रहा है? ज़ैनब, कई लोग ये चाहते हैं कि कुछ किए बगैर ही सब कुछ मिल जाए। क्या? ज़ैनब, जैसे साइकिल चलाने के लिए पैडल का चलना और खाने के लिए आग का चलना जरूरी है, वैसे ही अच्छी रियासत के लिए मुतहर्रिक और जिम्मेदार शहरियों का होना बहुत जरूरी है। हुकूमत का ये फर्ज है कि लोगों के मशवरे से अच्छी पॉलिसियां बनाएं और अवाम को भी मंसूबा साजी में शरीक करें, जबकि अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें और अहम फैसले करने में हुकूमत की मदद करें। ज़ैनब, अगर अवाम को लगता है कि हुकूमत अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो उन्हें चाहिए कि वो मसाइल हल करने में हुकूमत की मदद करें, और अगर फिर भी वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा ना उतरे तो उनका एहतसाब करें। मगर वो कैसे? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब, पहला कदम उठाकर। जी नाज़रीन, आज भी यहाँ स्मोक बढ़ता ही जा रहा है। नाज़रीन, ये छोटी सी बच्ची देखें, इसका तो कद भी स्मोक की वजह से छोटा रह गया। जी, इससे बात करते हैं। हमें इस स्मोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए जो हमारे इख्तियार में है। मसलन इस आग को बुझाना चाहिए जहाँ से धुआं पैदा हो रहा है। हुकूमती अहलकार आ चुके हैं, आग बुझ चुकी है और माहौल भी बेहतर हो चुका है, और ये सब कुछ कर दिखाया है इस छोटी सी बच्ची ने। तोड़ न्यूज़ से साइमा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब्बा, ये सब क्या हो रहा है? ज़ैनब, ये बच्चा माजूर है, लेकिन इसके लिए कोई रैंप वगैरह भी नहीं कि वो व्हीलचेयर पर बैठकर अंदर दाखिल हो सके। इसके लिए भी तो रास्ता होना चाहिए था ना। अब्बा, हमें तो स्कूल में ये सिखाया जाता है कि ये लोग माजूर या डिसेबल नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल होते हैं। अगर इनके लिए बराबर की सहूलियत नहीं होंगी तो ये अपनी सलाहियतों का इजहार कैसे करेंगे? वाह ज़ैनब, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। वो देखो, जेड वाली आ गई। जेड वाली। ये कहाँ से आ गई? ओह, शायद मैं जेड की शक्ल की वजह से अंदर दाखिल नहीं हो पा रही। कायद, ये सब क्या हो रहा है? ज़ैनब, हम सब इंसान हैं, हम सब में मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं। हो सकता है कि जाहिर में हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, लेकिन हमारी असल ताकत का अंदाजा उस वक्त होता है जब हम सबको अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने और आगे बढ़ने के एक जैसे मौके मिलें। ज़ैनब, मैंने एक ऐसा मुल्क बनाया था जहां सब बराबर हों, किसी को भी उसके रंग, नस्ल, जात, जबान, मजहब, जिन्स या माजूरी की बुनियाद पर निशाना ना बनाया जाए। ज़ैनब, हमें चाहिए कि अगर कोई हमसे मुख्तलिफ है तो हम उसे कबूल करें
उसे माशरे का हिस्सा बनने में मदद दें ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान को खुशहाल बना सकें। एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी पहचान बराबरी का निजाम हो, जहां हर किसी को उसकी काबिलियत की बुनियाद पर आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये फैसला तुम्हें करना है ज़ैनब, पहला कदम उठाकर। अब्बा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? मगर क्या? चले तो बताती हूँ। क्या आपने ये सब मेरे लिए किया है? ये तो अब्बा और गवर्नमेंट वाले अंकल ने मिलकर बनाया है ताकि आप जब चाहे अंदर जा सकें और मजे मजे की किताबें पढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, आपका भी हक है कि हर जगह आपकी पहुंच में हो और आपको बराबर की सहूलियत मिले, क्योंकि पाकिस्तान जितना मेरा मुल्क है उतना आपका भी है। पार्लियामेंट सेनेट के पास जाता है या सेनेट कौमी असेंबली? उफ, ये सब इतना मुश्किल क्यों है? सुबह पेपर भी है और ये सब कैसे याद होगा? ऊपर से ये नींद। जागो ज़ैनब, सोना नहीं है। यस, अब मैं जाग चुकी हूँ और अब मैं नहीं सोऊंगी। ये कौमी असेंबली क्या होती है? कानून कैसे बनता है? ये सेनेट क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। लेकिन मैं आपको ये सब बताऊंगी ज़ैनब। आप कौन है? मैं आईने पाकिस्तान हूँ। वाओ! मैं आज आपको जमहूरी निजाम और जमहूरियत की कहानी सुनाऊंगी। जमहूरी हुकूमत के 3 सतून होते हैं: अदलिया, इंतजामिया और मुकन्नना यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जमहूरियत का सबसे अहम सतून है, जहां अवामी नुमाइंदे होते हैं। कानून साजी और इंतजामिया की निगरानी पार्लियामेंट की अहम तरीन जिम्मेदारियां हैं। पार्लियामेंट के 2 हिस्से होते हैं, कौमी असेंबली और सेनेट। कौमी असेंबली के मेंबरान का इंतखाब अवाम करती है। कौमी असेंबली बनाने के बाद मेंबरान मुल्क के इंतजामी सरबराह यानी वजीर आजम का इंतखाब करते हैं। फिर वजीर आजम मुल्क के इंतजामी मामलात चलाने के लिए पार्लियामेंट के कुछ अरकान पर मुश्तमिल एक टीम बनाते हैं, जिसे वफाकी काबीना कहते हैं। ये थी कौमी असेंबली। अब हम चलते हैं पार्लियामेंट के दूसरे हिस्से की तरफ। पार्लियामेंट का ये हिस्सा सेनेट कहलाता है। कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में मौजूद हमारे नुमाइंदे सेनेट मेंबरान का इंतखाब करते हैं। कौमी असेंबली और सेनेट का अहम तरीन काम कानून बनाना है। वाओ! मगर ये सब कैसे होता है? जब भी कोई कानून बनाना हो तो इसे सबसे पहले बिल की शक्ल में कौमी असेंबली या सेनेट में लाया जाता है। एक ऐवान से मंजूरी के बाद इसे दूसरे ऐवान में भेजा जाता है और दोनों की मंजूरी के बाद इसे सदर पाकिस्तान के पास भेजा जाता है, जिनके दस्तखत होते ही ये बिल कानून बन जाता है। वाओ! ये सब कितना मजे का है। लेकिन एक सवाल है, अगर हम अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अवाम मकामी हुकूमत के दफ्तर से राब्ते के अलावा अपनी मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अपनी तजावीज कौमी असेंबली और सेनेट तक पहुंचा सकते हैं और सेनेट में पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। पार्लियामानी कमेटियों की पब्लिक हियरिंग्स में शामिल होकर कानून साजी का हिस्सा बना जा सकता है और मुख्तलिफ हुकूमती हेल्पलाइंस, कमीशंस और मुहतसिब के जरिए अपनी शिकायत हल करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस सब के लिए शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। वाओ! मुझे तो सब समझ आ गया है। लगता है मेरा काम खत्म हो गया। चलती हूँ ज़ैनब, इम्तिहान के लिए गुड लक। यार, इस जमहूरियत वाले पर्चे ने तो मेरा सारा नतीजा खराब कर दिया। मुश्किल से पास हुआ हूँ। ज़ैनब, तुम्हारे कितने नंबर हैं? पूरे 100 हैं? मगर वो कैसे? बस मैंने एक किताब से ये सब सीख लिया। सब लोग किताब से ही सीखते हैं। तुमने बड़ी बात बताई है।